Um, Welcome on yet another event hosted by CFO Club. And the topic for today is cryptocurrency. It's continuation of the webinar that we did last week. And hence, you would find a couple of, rather three of the faces unchanged. So Rizwan is I think इमरान आपकी आवाज कट रही है. विकास आपकी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है. I think certain issues हैं उसके. इमरान आपकी आवाज नहीं आ रही है. आप I've changed my internet. जी, it's okay. Please go ahead. I've changed my internet connection. So can you hear me, Rizwan? जी, it's okay. Please go ahead. Okay, perfect. So to introduce myself, my name is Imran. I am the CFO of Agro Fertilizer Limited, and I am part of a lot of events that are hosted by the CFO Club. It's always a matter of great pleasure to be part of these events. It's not only a learning experience for myself, but I'm able to connect with a lot of you people, professionals in the industry. I would just like to request Mr. Waqas to give a brief background about himself. Yeah, I'm Waqas Mahmood. I'm a member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan, and I did qualify in 2008. And I did my articleship from KPMG, and since 2008, I have been working with Pakistan Cables. And now I have been promoted as a CFO of Pakistan Cables Limited, and having a vast background in finance, a practical knowledge of finance and taxation, etc. Blockchain is a passion actually, and I learned it properly, and also learned about cryptocurrencies, DeFi's, all those protocols, including all the blockchains and their boards, etc. So that's it from my side. Amir, if you are here, I would like you to please quickly introduce yourself to our audience. Amir? I think Amir. Dr. Rizwan, can you please introduce yourself? And as Amir connects, we will do the introduction with him. Sure. Assalamu alaikum, everyone. I'm Dr. Rizwan Khan. So we did the webinar last time on blockchain, basics of blockchain. So quite interesting to see, and it's exciting as well that we had very good response from the last webinar, and inshallah we will try to touch on the cryptocurrency in detail as well today. So Rizwan, I would just like to start with you. Why don't you take people through? I believe Amir is back. I can now see him moving. Amir, if you can hear me, can you please spend a few minutes to quickly introduce our audience about yourself and your experiences in this field? No, again, Dr. Rizwan, over to you. Sure. For you to quickly introduce our audience about it. Okay, thank you very much. So, ladies and gentlemen, we are going to start the presentation, and this is basically a quick 10 minutes presentation, and after that we will go for the panel discussion. So I hope that you could see the presentation right now. Is it visible to everyone? Yes, I can. Yes, please proceed. Okay. All right. Okay, thank you. So basically, when we talk about cryptocurrency, so generally people think that blockchain is cryptocurrency and cryptocurrency is blockchain, but it's not the case. Cryptocurrency is only one application of the blockchain.
And we need to understand that how does cryptocurrency work in terms of operations, in terms of the value and other things. So we start from here. If you do not have the understanding of blockchain, so I would recommend कि आप CFO Club की YouTube channel पे जाएं और वहाँ पे आपको blockchain का पहला webinar आपको मिल जाएगा. आप उसको देखें and then you will have some understanding of blockchain. If you look at the history of blockchain, so it is as old as 1990s, but the real change in crypto came in 2009 when Satoshi Nakamoto, he wrote a white paper, and that were the basis of the cryptocurrencies. So this is basically the timeline of how things are going. So we have ICO, which is initial coin offering, and we have other things as well. So right now we are in 2022. And just, I think, a couple of days ago in Pakistan, there is a discussion going on whether the crypto should be blocked in the country. So Pakistan is not alone. There are many countries where cryptocurrencies are blocked, and there is a reason for that. So when we look into the detail of cryptocurrency, we will see that how things are moving. So पहले तो हम ये देखते हैं कि जो नॉर्मल करेंसी उसमें और क्रिप्टो करेंसी में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं. तो नॉर्मल करेंसी में आपके पास पेपर या कॉइन्स, मेटालिक कॉइन्स होते हैं और ऐसा फिजिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज. उसके साथ आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई है. जब भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है वो करेंसी छाप देती है. लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इस तरह नहीं होता. यहाँ पे एक आपके पास सर्टेन मैक्सिमम होता है. विद इन दैट मैक्सिमम यू हैव टू वर्क विद दैट. ऑल्सो नॉर्मल करेंसी में आपके पास जो इशूअर है वो गवर्नमेंट है, और यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर या कंपनीज या जो भी बिहाइंड दैट फोर्स जो भी है वो उसके पीछे होती है. नॉर्मल करेंसी सेंट्रलाइज्ड है, उसको सेंट्रल बैंक इशू करता है. क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है. दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डीफाई और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज बिकमिंग मोर पॉपुलर. और इसकी नॉर्मल करेंसी की जो वैल्यू है वो डिटरमिन करती है डिमांड एंड सप्लाई पे, और उसके अलावा रेगुलेशंस जो भी इन प्लेस हैं. लेकिन यहाँ क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है ये प्योरली डिमांड एंड सप्लाई पे बेस करती है. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक स्टेप बैकवर्ड लेते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कि करंट मनी क्या चीज होती है. सो एज आई मेंशन्ड इन प्रीवियस वेबिनार, मनी इज व्हाट मनी डज. एंड व्हाट डज मनी डू? सो मनी डिस्चार्जेस फंक्शन फॉर मीडियम, मेजर, वैल्यू, स्टोर. So that is basically the definition of money. So money is the medium of exchange. It's a measure of the value. It stores the value and it has the value in itself. अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो उस वक्त लोग सोना, चांदी, नमक, शेल और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते थे as money. Then later on fiat currency came, जहाँ पे आपके पास पेपर और मेटालिक कॉइन होते हैं. अब जो नया टाइम स्टार्ट हुआ है आफ्टर 2010, that is about digital currency और crypto currency. ये थोड़ा सा एक जोकिंगली मैंने एक चीज शेयर की है यहाँ पे. तो अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, आई डू नॉट ऑलवेज बाय द टिप, बट व्हेन आई डू इट कीप्स डिपिंग. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग. जो लोग क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग में उनको पता है डिप से क्या मुराद है. तो आमतौर पे होता ये है कि जब लोग खरीदते हैं तो उनके जहन में ये होता है कि मैं आज क्रिप्टो करेंसी खरीदूंगा और कल मेरे घर के सामने लैम्बोर्गिनी खड़ी होगी. बट दैट इज नॉट द केस. So on the right hand side, you can see that in January expectation that you will be sitting as a billionaire and sipping the coffee, but actually you ended up working in the McDonald's on the minimum wage. So this is kind of joke. It's not necessarily true, but then cryptocurrency trading and other thing, you have to look into that. That's a long-term game. It's not short-term game. Then we go to certain myths and that are associated with the cryptocurrency. So we see that blockchain is Bitcoin and Bitcoin is blockchain. So this is not true. This is false. Blockchain are costly and inefficient. This is also false. We have seen that different types of different models are there. All data put on a blockchain is public. That is also not true. We have seen there are different models of blockchain. So what is true? Blockchain is immutable and unhackable. So this is true. Theoretically, blockchain is unhackable unless you can get control of more than 50% of the nodes. Then blockchain will become vulnerable. So आपको सब लोगों की स्लाइड मिल जाएगी, तो इसमें आप परेशान ना हो. आप अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दीजिएगा तो ये स्लाइड आपको ईमेल हो जाएगी.
अब अगर हम देखें 2021 में, year of the cryptocurrency, so Dogecoin has increased in value by 7,500%, Maker has increased by 760%, Bitcoin has increased 113%. So there's a quite jump in that, and we have seen that the Bitcoin has gone up and gone down. A lot of people have lost a lot of money, and a lot of people have made a lot of money. So it's just like any trading, cryptocurrency is very similar to that. And I'm not encouraging or discouraging or anything. We are just describing here what is crypto trade and how does it work. So when we look at the crypto trading or the cryptocurrency trading, there are certain things, altcoin, ATH, fiat, and all these things, which are very similar to what you see in normal stock market. But then there are certain scams there as well, because in crypto you do not know who you are dealing with. So there are many things that are there. For example, one of the common scam is pump and dump. So that is also very similar. Those who are dealing in a stock exchange, they have seen that is very common. There are Ponzi scheme, there are traditional theft, there are hacking and all these risks that are involved in the cryptocurrency. So generally, some people have understanding that if you have cryptocurrency, you are immune to all kind of frauds, but that is not the case. In some cases, that cryptos may face even a bigger threat for the fraud. So on the right hand side, you can see a slide. It says that before you trade. So if you want to start the trading, you need to see what is the trend. Is it bullish? You can see on the left hand side. If it is bullish, then is price at support? Yes, then you should buy. If it is no, don't trade. The other one could be bearish. Is price at resistance? Yes, you sell it. If no, then don't trade. If there is sideways, then wait for the breakout. So what is the difference or the similarities in stock and crypto? So we can see that crypto, it represents a currency, whereas in stock, it represents equity in the company. So the main difference is basically money trade versus stock trade. If you ask me, I would say that both stocks and the crypto are unrealistic view of wealth, because your wealth is dependent on the underlying asset. So that's why it is really important to understand. But blockchain is a reality. It's a really big thing, and it will be as big as the internet was in 1990s. So go ahead with that and see that how it is moving. In 2023, most countries will move to the central bank digital currency, and that would be the change in the whole game of the crypto trading and other things. This particular slide is just a brief overview that how things are going on in the crypto transaction. So when you start a transaction, the transaction needs to be validated, and then you say that, okay, there's a proof of work or there's a proof of stake, and from there you can transfer the money or cryptocurrency from one person to the other person. When you do this transaction, a new block is added in the blockchain and the transaction is completed. But of course, there are many validation methods are in between. We are not going into that much in technical detail. In the normal currency, generally when you do the trade, you give the physical currency to someone and transaction is done. On the other hand, in crypto, you need to authenticate this first and then the transaction is done. So there's a slight difference in that. This slide is basically from the previous one where we discussed how the transactions are done. So two parties, they share the data. There are different ways of proving that whether the transactions are genuine or not. As I mentioned earlier, proof of work or proof of stake, or there are other methods as well. So that's how transactions are done in the blockchain, and the blockchain is updated with the new record. And that's how the cryptos are moving from one person to the other person. Then the interesting thing would be crypto loans. In the near future, there will be more things like this will be coming. And this is more like a DeFi or decentralized financing, where the loans are given through cryptos. And that will be very interesting to see that when these transactions will become a commonplace in next
3 to 4 years maybe. So that's all about my presentation for today. Over to you, Imran. Thank you so much, Rizwan. Before I speak, am I audible? Can you hear me? Yeah. Yes. So thank you, Rizwan, for educating us all on this subject. I believe you have been doing a great job in enlightening people and then clarifying a lot of confusion that currently exists on this field. With this, Amir, are you there? Can you please say hi? Amir, I cannot hear you. Can you please unmute yourself? Because I believe we would like to hear you now. Hello. Amir, no, we cannot hear you. Maybe, no, Amir, now you are on mute. No, yeah. Hello. No, Amir. Okay, so Waqas, would you like to shed any further light on this subject before we move on to any questions and comments on this front? Yeah, इमरान, I would like to add something on that. थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो है ये काम किस तरीके से करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं टेक्निकलिटीज में जाऊँ इसमें। तो अगर हमारे पास जो टोकन्स हैं या क्रिप्टो करेंसीज जिसको हम कहते हैं, टेक्निकली दीज आर टोकन्स। तो टोकन्स जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक जो है वो यूटिलिटी बेस्ड टोकन्स होते हैं या जो है ब्लॉकचेन के अपने करेंसी टोकन्स होते हैं। हमारे पास जितनी भी ब्लॉकचेन्स चल रही हैं अभी दुनिया में, उन सब का एक अपना अपना टोकन होता है। जैसे इथेरियम एक ब्लॉकचेन है, उसका एक ईथर टोकन है। बाइनेंस एक जो है वो ब्लॉकचेन है, उसका BSC एक टोकन है। इसी तरीके से मैटिक जो है वो एक ब्लॉकचेन है, उसका एक मैटिक टोकन है। ये उसके नेटिव टोकन्स होते हैं। ये उसके जो है, अगर हम ये बात करें कि अगर वो ब्लॉकचेन एक दुनिया है तो वो जो टोकन होता है वो उनका डॉलर होता है। सारे टोकन्स जो है वो उसी में जो है वो बाय सेल हो रहे होते हैं। तो ये जो बेसिक टोकन्स होते हैं या नेटिव टोकन्स होते हैं, ये काफी ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं बिकॉज वो ब्लॉकचेन के अपनी करेंसी होती है। ये कोई आम बंदा नहीं बना रहा होता। ये मिंटिंग के प्रोसेस जो ब्लॉकचेन खुद ब्लॉक्स मिंट हो रहे होते हैं, उस पे जो है ये मिंट हो रहे होते हैं और एज अ रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं टू द मिंटर्स। तो ये तो काफी ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं। एक और टोकन होते हैं जिसको हम कहते हैं ERC-21। ERC-21 इज अ प्रोग्रामेबल कोड ओनली, दैट्स इट। वो कोड जो है, वो कोड को हम इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे एक आम प्रोग्रामेबल कोड होता है, इसी तरीके से एक कोड होता है, उसको हम ब्लॉकचेन पे अपलोड कर देते हैं एंड वो टोकन बन जाता है। और लोग जो है वो उसको बाय सेल कर रहे होते हैं। हम और आप भी जो है वो वैसा ही टोकन बना के अपलोड कर सकते हैं और लोग उसमें बाय सेल कर सकते हैं। प्रॉब्लम जो उसकी पीछे वैल्यू होती है असल में, वो समझने की जरूरत होती है कि जो नेटिव टोकन्स के अलावा होते हैं वहां पे बहुत ही डिटेल में देखने की जरूरत होती है कि वो टोकन्स के पीछे उसके फंडामेंटल्स में क्या चीजें चल रही हैं। जो फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं, स्कैम्स की बात कर रहे हैं, वो यूजुअली इन्हीं किस्म के जो है वो टोकन्स में, जिसको हम ERC-21 कहते हैं, वो उन किस्म के जो है टोकन्स में ये मसले आते हैं। और उसको समझने की जरूरत होती है। वो ओपन सोर्स होते हैं, उनको जाके हम, हर ब्लॉकचेन ये फैसिलिटी देती है कि आप वहां पे जाएं और उन टोकन का कोड पढ़ लें कि वो कह क्या रहा है। तो ये एक चीज है जिसको बुनियादी तरीके से दो किस्म की क्रिप्टो करेंसी होती है। लाइक आई वुड लाइक टू से, एक जो है जो कि उसकी नेटिव करेंसी होती है और एक ERC-21 होते हैं। बिटकॉइन इज नीदर ऑफ देम। टेक्निकली इट्स अ नेटिव करेंसी, क्योंकि बिटकॉइन का अपना कोई जो है वो, बिटकॉइन में आप कोई कोड अपलोड नहीं कर सकते हैं बिटकॉइन के नेटवर्क में, वो ये फैसिलिटी नहीं देता है, तो उसका कोई दूसरा टोकन नहीं बन सकता है। इसके अलावा बाकी जितनी ब्लॉकचेन्स हैं उन सब के अपने दूसरे टोकन्स बन सकते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर नेटिव टोकन्स।
तो ये एक मेरे जहन में जो है वो, इसके अलावा एक और चीज है वो हम और भी आगे ऐड करेंगे कि जो है वो हमारे पास नॉर्मल एक्सचेंजेस में और क्रिप्टो एक्सचेंजेस में एक बहुत ही बेसिक सा फर्क होता है, वो होता है ऑटोमेटेड मनी मार्केट का या ऑटोमेटेड मार्केट मेकर का जो है कॉन्सेप्ट होता है। वो भी हम लोग जो है वो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे। अच्छा, वो एक चीज है जो कि डिफरेंशिएट करती है बिटवीन डीफाई और जो है वो नॉर्मल मार्केट को, दोनों में बड़ा ही डिफरेंस, यही एक मेजर डिफरेंस होता है। ठीक, Vikas, thank you so much. And I would just like to repeat what Dr. Rizwan earlier said. कि जी, the purpose of this call is purely educational. यहाँ पर सिर्फ हम किसी सूरत किसी चीज को प्रमोट और डिमोट नहीं कर रहे. The purpose is as finance professionals, there is a lot of talk about on this topic. I believe रोज ही अखबारों में आ रहा है. So at least we should have basic knowledge of what this entails. With this reminder once again, I would like to try to move to Amir once again. Amir, can you please say something? I don't believe Amir's network. Some issue with them. There Okay, I is think yes, we can take a question maybe. yes, there is a question. What are the what is the basis of intrinsic value of any currency? So, Dr. Saab, would you like to take it on? जी, जब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो सिवाय गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स के इंट्रिंसिक वैल्यू तो किसी भी चीज की नहीं है। अब आपकी जेब में जो 5,000 का नोट पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू मेरा ख्याल से कोई 23-24 रुपए होगी, समथिंग लाइक दैट, नॉट मोर देन दैट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो फिएट करेंसी की भी नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिप्टो की भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जब हम बात करते हैं फिएट के बाद से जितनी भी करेंसीज के मॉडल्स आए हैं उन किसी की भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। सारी वैल्यू डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट उसको क्या वैल्यू असाइन करती है, ए, और दूसरा ये कि उसकी डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे हम उसको क्या वैल्यू असाइन करते हैं। सो दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हैविंग एन इंट्रिंसिक वैल्यू, तो बोथ पेपर करेंसी एंड क्रिप्टो बोथ आर बेसिकली यूजलेस फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, इसकी जो परसीव्ड वैल्यू है दैट इज वेरी हाई, डेफिनेटली वो एक अलग चीज है। So, अगर मैं अगला सवाल वकास से पूछूं कि वकास, there is a lot of talk कि जी a lot of money went out, by people buying it and it should be banned, and I have heard that the government has banned something earlier today. So, just try to give us some idea as to how does the money flow against this this form of currency. इसको अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास जो है जो यूटिलिटी करेंसी जिसको मैं नेटिव टोकन्स कह रहा हूं, वो एज अ रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं लोगों को ब्लॉक को माइन करने में। तो वो उनके पीछे उनकी एफर्ट्स लग रही होती हैं, उनकी रिसोर्सेस लग रहे होते हैं, तो वो तो उनको एक करेंसी मिल रही होती है और वो उसके ओनर होते हैं और उसकी तो एक वैल्यू इस तरीके से बन रही होती है बिकॉज वो एक स्केर्स रिसोर्स है, तो वो स्केर्सिटी की वजह से उसकी एक वैल्यू है और उसकी जो इशुएंस है वो भी लिमिटेड है। हमारे पास जो लेकिन ऐसे टोकन्स जो हैं वो पूरी इस क्रिप्टो वर्ल्ड में कोई हार्डली 10-12 होंगे जितनी ब्लॉकचेन है। लेकिन जब हम टोकन्स की बात करेंगे तो अब अगर आप देख लीजिएगा तो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में नहीं तो सैकड़ों की तादाद में आपको टोकन्स मिलेंगे और उसमें डजन्स जो आपको हर घंटे में जो है वो डिप्लॉय होते हुए मिलेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं शायद उससे 1-2 डजन अब तक डिप्लॉय हो चुके हैं। सो इसको ये होते किस तरीके से हैं, ये इसमें वैल्यू डलती है बेसिकली स्वैप्स के थ्रू। एक स्वैप्स होते हैं, हर ब्लॉकचेन के होते हैं। आप जो है जब ये जो अपने बनाए हुए टोकन्स हैं उसको जो है वो आप देते हैं ब्लॉकचेन को अलोंग विद देयर नेटिव करेंसीज। तो एक पूल का जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है कि पूल में जो है वो पैसा चला जाता है और उस पूल की एक वैल्यू होती है और उस पूल से जो है जो पैसा ट्रांसफर हो रहा होता है, तो जैसे अच्छा उसका एल्गोरिथम एक ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे ही लोग जो है वो टोकन बाय करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है, और मिसाल के तौर पे मैंने एक टोकन बनाया, टोकन एक्स, मैंने ईथर्स के साथ मिला के उसको पूल में डाल दिया। अब मैंने आपको कहा, रिजवान भाई को कहा, दूसरे लोगों को कहा यार मेरे टोकन बाय करें,
तो जैसे जो लोग मेरा टोकन एक्स बाय करते हैं तो वो ईथर्स जमा करेंगे, क्योंकि ईथर्स के अगेंस्ट में मिलता है, वो फियाट करेंसी के अगेंस्ट में तो नहीं मिलता। ये ध्यान में रखने की बात है कि ये सारे टोकन्स क्रिप्टो टू क्रिप्टो ही ट्रांसफर होते हैं, ये पैसे देके नहीं होते बाय ऑल मीन्स। तो जब मैं ईथर दूंगा तो ईथर दे रहा हूंगा और मुझे वो टोकन मिल रहे होंगे, तो इन उस पूल में जो है वो ईथर्स जमा हो रहे होंगे और ईथर की एक अपनी वैल्यू है। सो इस तरीके से जो मेरा पूल है उसमें जो है वो बहुत सारे ईथर जमा हो जाएंगे और वो टोकन लोगों को चले जाएंगे और उस टोकन की बेस पे एक ईथर्स होंगे। अच्छा, अगर मैंने वो ईथर्स निकाल लिए बीइंग द ओनर ऑफ दैट टोकन, तो उस पूरे पूल की वैल्यू डम करके नीचे गिर जाएगी। तो ये जो है, अच्छा इसमें इसी तरीके से इसका जो एल्गोरिथम है वो इस तरीके से है कि जैसे अगर आप शुरू में बाय करते हैं तो उसकी प्राइस बहुत छोटी होती है, जैसे जैसे लोग जितना ज्यादा बाय करते हैं वैसे वैसे उसका जो स्लोप होता है वो बहुत हाई हो जाता है। तो जब वो ज्यादा लोग बाय करना शुरू कर देते हैं तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर उसका जो इंक्रीज का परसेंटेज है वो भी बहुत ज्यादा कम कम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे लोग बाय करते जाते हैं। तो आजकल एक और कॉन्सेप्ट निकला है स्निफर्स का। स्निफर्स क्या करते हैं? स्निफर्स ये करते हैं कि बोट्स हैं, ऑटोमेटिक बोट्स, वो स्निफ कर रहे होते हैं सारे ब्लॉकचेन्स में यहाँ वहां जाके कि कौन से नए टोकन्स जनरेट हुए हैं और उन्होंने अपने आप को जो है वो पूल में पैसे डालने हैं, क्योंकि वो टोकन्स जो है वो अभी जो है वो ब्लू सी में है और वहां जाके आप बाय करें, उनकी वैल्यू बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और ऐसे बेतहाशा टोकन्स जो है उन ओनर्स की वजह से ही वो डंप करके गिर भी जाते हैं और वो पैसे जो है वो लोगों के जाया भी हो जाते हैं, बिकॉज जितनी तेजी से वो ऊपर जाता है उतनी तेजी से वो नीचे भी आ सकता है अगर लोगों ने इसको सेल करना शुरू कर दिया, वो वही एल्गोरिथम रिवर्स चलना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज ये भी है कि पैसे तो आपके जो है वो कहीं नहीं जाएंगे, अलबत्ता अगर आपने पीछे उसका जो कोड है वो यही लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे ईथर्स जो है वो ओनर ले सकता है, तो फायदा नहीं है, वो ओनर तो लेके भाग जाएगा। तो ये लोगों को पढ़ने की जरूरत है कि उस कोड के पीछे क्या लिखा हुआ है। और देयर इज एन इकोसिस्टम, पूरा एक इकोसिस्टम होता है हर ब्लॉकचेन का। उसमें स्वैप का एक जो है वो पूरा एक सिस्टम बना होता है, उसमें जो है एक क्या नाम है, फैक्ट्री होती है, उसमें आपका उसका स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है, और ये सब आपका टोकन उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है। वैसे तो बाकी चीजें तो सारी स्टैंडर्ड होती हैं, आपका आपके टोकन में क्या लिखा हुआ है जस्ट नीड्स टू बी रेड एंड अंडरस्टूड कि वो उसकी नीयत क्या है ईश्वर की। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि व्हाट डू यू फील इज द मैच्योरिटी लेवल ऑफ रेगुलेशन अराउंड दिस न्यू evolving means of transferring value? So what is your view about? श्योर। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा वकास साहब की जो एक्सप्लेनेशन थी वो उन्होंने काफी टेक्निकल अंदाज में बताई और बहुत ही एक्यूरेट बताई है, उसको मैं थोड़ा सा एक लेमैन टर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वो लोग जो जिनको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको भी एक आइडिया हो जाए। तो बेसिकली जब आप नॉर्मल करेंसी की बात करते हैं, आप इसको इस तरह समझेंगे सोने के सिक्के और क्रिप्टो करेंसी। तो सोने के सिक्कों को आपको मिंट करना पड़ेगा, आपको उसको फाउंड्री में ले जाना पड़ेगा, वहां पे आप उसको मिंट करेंगे, यहाँ पे आप उसको माइन करते हैं। अच्छा, माइनिंग का जो प्रोसेस है लोगों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड प्रोसेस है। लोग समझते हैं माइनिंग का मतलब एक्चुअली आप माइन कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली माइनिंग में आप कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन कंप्यूटर परफॉर्म करता है ताकि वो उसका एक फर्दर इंक्रिप्शन जनरेट कर सके और एक नया ब्लॉक ऐड हो सके। जब आप उसको ये जब कर लेते हैं तो आपके पास वो एक नया ब्लॉक जनरेट हो जाता है और आपको उसके रिवॉर्ड में आपको फर्दर कॉइन मिलते हैं। आई थिंक बिटकॉइन की हिस्ट्री में, इफ आई एटलीस्ट इन द नियर हिस्ट्री, जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है आई थिंक वो 2 दिन पहले एक सिंगल माइनर को मिला है, 6.25 बिटकॉइंस, जो कि डॉलर में तकरीबन कोई $250,000 बनता है। अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है, उसको ये सबसे लार्जेस्ट रिवॉर्ड उसमें उसको मिला है। अच्छा, एक चीज में और थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जो टोकन की और उसकी बात कर रहे हैं करेंसी की, तो आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा कि जब आप बचपन में किसी रेस्टोरेंट, जो जिसको हम पाकिस्तान में होटल कहते हैं,
वहां पे जब आप जाते थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो आप उसको कैश देते थे और आपको छोटे छोटे टोकन देता था। रोटियों के अलग होते थे, सालन के अलग होते थे। तो ये आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने किया, एटलीस्ट मेरे साथ तो हुआ ही है। तो वहां पे आप जाके जो है वो टोकन देते थे और वो आपको चीजें दे देता था। इट्स वेरी सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पे बस एक चीज ये कि आप क्रिप्टो करेंसी से आप टोकन खरीद सकते हैं, लेकिन टोकन से क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद सकते, जैसा कि वकास साहब ने भी कहा। तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप कैश से, रियल कैश से, डॉलर से या जिससे भी आप क्रिप्टो खरीदते हैं, उस क्रिप्टो से फिर आप टोकन खरीदते हैं। ये तो बात हो गई उसको थोड़ा सा लेमैन टर्म में एक्सप्लेन करने की, जो कमेंट्स भी आ रहे थे। जहां तक बात है रेगुलेशन और मैच्योरिटी की, तो आई थिंक क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ही काइंड ऑफ अर्ली स्टेज में, इन्फेंसी में नहीं भी है। तो आप इसको ये समझें कि 10 साल का बच्चा है क्रिप्टो करेंसी इस वक्त, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसको रेगुलेट किया जाए। अदरवाइज हमने देखा कि बिटकॉइन जो है वो 0.001 से जो है वो 60,000 तक चला गया, और डेफिनेटली इसके पीछे बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो वो सारे उन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। अब जो आई थिंक जो गवर्नमेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि किस तरह क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए ताकि वो उसको मॉनिटर कर सकें। लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनका जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो ये कि हर चीज को कंट्रोल में किया जाए। अगर आप FATF को देख लें या किसी और रेगुलेशन को देख लें, वो सारे कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो अनफॉर्चुनेटली क्रिप्टो करेंसी जो है वो अभी तक उस कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर नहीं आ सका है, और इसको आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अनटिल एंड अनलेस के तमाम सेंट्रल बैंक एक CBDC इशू करें। और जिस तरह देख रहा हूँ, आई थिंक इन द फ्यूचर ये बेसिकली एक पूरी दुनिया में एक CBDC सेंट्रलाइज करेंसी होगी जिसको आप डिजिटली ट्रेड कर सकेंगे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक रेफरेंस दूं, तो आप लोगों में से जिन लोगों ने मूवी देखी है डाइवर्जेंट सीरीज, तो अगर आप उसको दोबारा जाके देखें तो आपको क्रिप्टो के पस मंजर में आपको वो मूवी जो है बहुत रेलेवेंट लगना शुरू हो जाएगी। इवन SBP ने भी जो है वो ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है रास्त के नाम से। जी, Thank you so much. Thank you, Dr. Saab. There is a question from Anwar Ahmed Sheikh. What would be the impact of banning Bitcoin in Pakistan? So I would like to, once again, I would like to see whether Amir, can you speak? Amir cannot speak again. Okay, Waqas Saab, would you like to take this question on? या श्योर। देखिए, इसमें जो है वो बिटकॉइन को जो बैन करने का असल मकसद है वो ये है कि इसके पीछे की अभी तक विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इसको जो ट्रेड करने वाले लोग हैं वो इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए किसी भी किस्म की किसी भी KYC की ज़रूरत नहीं है। आपको वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है, आप जो है वो लोगों को ट्रांसफ़र कर दें, और उसके लिए आपको you don't need to think about the borders, you don't need to think about any visa etc anything। तो आपको वैल्यू ट्रांसफर करनी है तो आप जो है वो उसको वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासतौर पे FATF की वजह से। और इसमें तो ये चीज क्या नाम है, हमें इम्पैक्ट, देखिए हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या करेगा, हम जो है वो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज में तो हम जा नहीं रहे हैं। हम लोग जो है वो हमारे पास ऑलरेडी जो अपने चैलेंजेस हैं वो हम पहले पूरे कर लें, और इसके बाद फिर हम जो है वो बिटकॉइन जैसी चीजों पे बात कर लेते हैं। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो हमारी जरूरत यही है कि हम ऐसी चीजों को जो कि हमारे लिए हमारी सोच से सॉरी टू से, लेकिन हमारी जो है वो ओवरऑल नेशन की सोच से बहुत ज्यादा आगे की बात है, तो उसको एट दिस स्टेज उसको खेलने की जरूरत नहीं है। ये वो चीज है कि जिसमें थोड़ी सी भी गलती अगर हो जाए, ये इतना आसान नहीं है इसमें ट्रेड करना। इसमें अगर आपकी थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो आपके करोड़ों रुपए आपके जा भी सकते हैं, और ऐसा होता भी है, हुआ भी है। तो पहले हम जो है वो ऐसे चैलेंजेस को देख लेते हैं जो कि हमारे पास हैं। इसके बाद फिर जो है वो बिटकॉइन या और किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात करें। वैसे डिजिटल करेंसी एक अलग चीज है जिसको CBDC कह रहे हैं, वो ब्लॉकचेन पे नहीं है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, उस पर तो काम हो रहा है, और वो शायद जो है वो बहुत फास्ट ट्रैक पे हो रहा है, और वो SBP उसको जो है वो कुछ ही सालों में कर भी देगी। बट दैट वॉन्ट बी क्रिप्टो, दैट वुड बी अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी।
बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब आप भी जरा इस पे अपने व्यूज जरा शेयर कर लें। वंस अगेन आई विल क्या कि आमिर आमिर आप कुछ कहें? नहीं डॉक्टर साहब आप अपने व्यूज शेयर करें जी। और डॉक्टर साहब ये भी अ, बताएं कि पाकिस्तान से डॉलर निकालना कितना मुश्किल काम है। सो जब ये कहा जाता है कि जी बहुत सारे डॉलर मुल्क से बाहर चले गए इस फॉर्म में, तो उसके बारे में आप जरा अपने व्यूज जरा दीजिएगा कि हाउ इज इट पॉसिबल टू फॉर एनीवन टू टेक सो मेनी डॉलर्स थ्रू दिस। तो ये दो सवाल जरा आप प्लीज एड्रेस। देखें, डॉलर निकालने के, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में देखूं तो पाकिस्तान से डॉलर निकालना जो कहता है मुश्किल है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक, अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहे हैं तो डेफिनेटली मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप उसको यूज कर रहे हैं क्रिप्टो परचेज करने के लिए, पाकिस्तान में कई एक्सचेंजेस हैं जो चल भी रहे हैं, बाइनेंस और दूसरे, जहां पे अब FIA उस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो डेफिनेटली आपके पास कंट्रोल होना चाहिए ताकि आपका जो कैपिटल वो फ्लाई ना कर सके, नंबर वन। दूसरा, ये करप्शन हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू है और यहाँ पे इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा जो वकास साहब ने जो पॉइंट रेज किया है, आई फुली एग्री विद दैट कि हमें पहले अपने इंटरनल इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं कि क्रिप्टो जो है वो क्या हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। अगेन मैं एक पिछले वेबिनार से एक कमेंट जो अहमद साहब ने दिया था कि हमारे पास जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगर हम इसमें क्रिप्टो में चले जाएंगे तो अभी आप देखें डबल शार, इस तरह के जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसे लोगों के खा के भाग चुके हैं, और अभी एक रिसेंटली एक केस चल रहा है B4U कंपनी का, तो ये सारे केसेस वो हैं जो कि पॉइंट आउट करते हैं कि क्रिप्टो के नाम पे फ्रॉड करना कितना आसान है। अच्छा, वो आसान इसलिए है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि क्रिप्टो क्या है। मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, जिन लोगों को पता है वो जाहिर बात है कि उसमें ट्रेड नहीं करते। आई एम नॉट रियली श्योर कि आप लोगों में से किसी ने क्रिप्टो खरीदी होगी। मतलब मैं इससे इन टच हूँ और मैंने इसको क्रिप्टो में ट्रेडिंग इसलिए नहीं की। एक तो इसमें जो मेरा व्यू पॉइंट है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वही है कि जो आप स्टॉक एक्सचेंज में जितना आपको टाइम चाहिए होता है उतना ही टाइम आपको यहाँ क्रिप्टो में चाहिए होता है, अदरवाइज आप पैसे लूज कर जाते हैं। अच्छा, डॉलर की फ्लाइट, आपने क्रेडिट कार्ड लिया, क्रिप्टो खरीदा, उसके बाद आपने दूसरे मुल्क में क्रिप्टो बेचा और आपके पास पैसे आ गए। तो अब ये जो चीज है इसको कंट्रोल किस तरह करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। या तो गवर्नमेंट उसको फिर फर्दर लेके जाए कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजेक्शन हो रही है उसका भी ऑडिट हो, वो भी आपके टैक्स नेटवर्क में आए, तो फिर ये चीजें जो हैं वो हो जाएंगी। अदरवाइज इसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है पूरी दुनिया में। चाइना ने बैन कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारे मुल्क में एक बड़ा अच्छा जो वो है पास टाइम लोगों की हॉबी है, वो ये कि जी हुकूमत को गालियां दें। ठीक है जी, बिल्कुल दें गालियां, लेकिन आप उसको कंपेयर करें कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। वियतनाम में क्रिप्टो बैन है, चाइना में क्रिप्टो बैन है, कई मुल्क ऐसे हैं जहां पे क्रिप्टो बैन है। हालांकि वियतनाम जो है वो आई थिंक इज नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बैन है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यू हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा, हमें वहां पे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसके अंदर जाएंगे। तो वही वाली बात कि क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान के हर लोग सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाके परचेज कर सकते हैं? नहीं। तो फिर हम क्रिप्टो के लिए क्यों हम इतने ज्यादा बेचैन हुए जा रहे हैं? या तो फिर हम वहां पे फिर किसी हद तक रेगुलेशन लगाएं ताकि एक आम आदमी का पैसा जो है वो महफूज रखा जा सके। Amir, I believe now you are with a better connection. Can you please say something? Assalamualaikum. Ji, Assalamualaikum. Can you hear me now? Finally we managed to hear you, Amir Saab. Ji, Amir Oh, Saab, pehle okay. I know we are almost 40 minutes into the call, but can you please first introduce yourself and then I will direct one of the question to yourself. Yes, my name is Mohammed Amir Rizwan and I'm working as a crypto trader and I have done my MSIT. नहीं आमिर साहब आवाज नहीं आ रही सही। डॉक्टर साहब आपको भी नहीं आ रही या मुझे अकेले को नहीं आ रही? नहीं मुझे नहीं आ रही आवाज जी। एक मिनट जी। कैन यू हियर मी नाउ? जी बोले जी। मैं पहुंचा था कि मैं मिस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 9 इयर्स था, उसके बाद वापस पाकिस्तान आ गया, वहां पे टर्माइल आ गया था। नाउ आई एम इन पाकिस्तान, इल्मा यूनिवर्सिटी में था, देन नाउ आई एम इन स्कूल। वेरी नाइस। तो सर जरा बताइएगा, आपने सारी डिस्कशन सुनी, फर्स्ट लेट्स हियर योर व्यूज, बिकॉज
you are as close as a person can be to this. So I please आप अपने views share कीजिएगा before हमारे पास एक दो सवाल है जिनके जवाब मैं फिर लूंगा in the next few minutes. आमिर. अच्छा, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्रिप्टो पाकिस्तान में जो है वो किस तरह चलेगी, जहां पे हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर इतने सारे इशू आते हैं. इट्स नॉट अबाउट आमिर और एनीवन, ये इशू कहीं पे भी आ सकते हैं. तो ये रिलायबिलिटी ऑफ, जब तक हमारे पास 5G पाकिस्तान में जब तक 5G नहीं आता, आई थिंक ड्रीमिंग अबाउट हैविंग क्रिप्टो ट्रेड और डीलिंग इन क्रिप्टो, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल. बहुत बहुत बड़े इश्यूज हैं. ठीक, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि कभी आपने क्रिप्टो की हेजिंग के बारे में सुना है, कि और आर दीज टूल्स अवेलेबल? देखें, अगेन क्रिप्टो का जो मेन पर्पस है, आई थिंक आप इस क्वेश्चन के हवाले से बात कर रहे हैं कि वोलेटिलिटी एंड हेजिंग एंड ऑल दिस एंड दैट. देखें, बात यह है कि हम जो है, अगर हम बात कर रहे हैं कि अब इसको थोड़ा सा बैक में जाकर सोचें कि जब पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई तो लोगों ने कहा कि जी ये तो खाली कागज है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं. तो डेफिनेटली बिल्कुल सही बात थी. तो फिर हैजिंग एंड ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम देयर. अच्छा, फिर उसके बाद अब जब हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल करेंसी आई क्यों है, ताकि वो जो एक सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है उससे जान छुड़ाई जा सके. अच्छा, हैजिंग के लिए जब आप जाते हैं तो हैजिंग में किसी ना किसी का रिस्क होता है. तो क्या क्रिप्टो के अंदर हैजिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर कोई उस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाए. ठीक है, जो फाइनेंस प्रोफेशनल है उनको पता ही है कि हैजिंग में या तो बायर का बैंक या सेलर का बैंक को लॉस होता है, एंड इस वन वे और द अदर. जो भी हैज कर रहा है उसको या तो बेनिफिट होगा या वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. अब क्रिप्टो में कौन ये रिस्क लेने को तैयार है? एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो में जो लोग डील कर रहे हैं वो मिलेनियल्स हैं. वो लोग हैं जो, और इवन वो लोग हैं जो 90s में या 2000 में पैदा हुए हैं, वो लोग इसके अंदर डील कर रहे हैं. तो उनके लिए रिस्क और हैजिंग ये कोई मायने नहीं रखती. और एक चीज और जिसको मैं हमेशा हाईलाइट करता हूं कि ये वो जनरेशन है जिसको मैं आईफोन जनरेशन कहता हूं, और ये वो जिनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, जहां पे इनको अभी इन्वेस्ट किया अभी रिजल्ट चाहिए. हैजिंग कौन करेगा? हैजिंग तो आपके और मेरे जैसे लोग जो बैठे हुए बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे आपको ट्रांजैक्शन को हैज करने की जरूरत है. यहाँ पे तो वॉलेटिलिटी, जहां पे उनका एड्रीनलिन मूव हो रहा है, वॉलेटिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम. So that is the thing. So I don't think hedging in any time soon that would be possible. But it is possible अगर कोई exchange या कोई और पार्टी उसके अंदर रिस्क लेने को तैयार हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर साहब, आप बड़े सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं. दैट इज रियली रियली अप्रिशिएटेड. अच्छा जी, अगर मैं अपना अगला सवाल वंस अगेन आई विल आस्क फ्रॉम वकास, यार व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद क्रिप्टो? आप आई नो इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन एंड सम ऑफ दीज questions have been answered before as well, but yes, just to answer him, I would like to hear your views. I think I would be able to answer it in best possible way, because मेरे अपने जो है वो $400 मैं इसमें लूज कर चुका हूँ. So I can feel the pain. So देखिए, जो भी ब्लॉकचेन है या जो है क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो वॉलेट एड्रेसेस पे चलते हैं. वॉलेट एड्रेस क्या होता है कि जब भी आप क्रिप्टोस में डील करेंगे आपको एक वॉलेट एड्रेस मिलेगा. इट्स बेसिकली, अब आम अल्फाज में समझ लें, आपका बैंक अकाउंट है. तो वो बैंक अकाउंट जो है वो आप हम सबको एक दूसरे का पता होता है कि जो है ये बैंक अकाउंट जो है वो आपके पास है, और उसके पीछे एक की होती है जिसको हम जो है वो प्राइवेट की कहते हैं. वो किसी के पास नहीं होती है, वो सिर्फ हमारे पास होती है. तो अगर आपकी प्राइवेट की चोरी हो गई है तो आपके सारे क्रिप्टोस इजीली चोरी हो सकते हैं. और लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कीज का ख्याल नहीं रखते हैं, और उसकी वजह से, वो प्राइवेट कीज की वजह से उनके सारे अकाउंट से सारे क्रिप्टो करेंसीज जो है वो मूव इजीली कर दिए जाते हैं या चोरी कर लिए जाते हैं. ये सबसे बड़ा जो है ये एक होता है. अब इसमें जो है वो ट्रेडिशनल हैकर्स भी होते हैं, वैसे भी जो है वो आपने कहीं रख दिया, मिसाल के तौर पे आपने अपने मोबाइल में जो है वो रख दिया, और किसी ने मोबाइल का कहीं पे एक्सेस है तो वो वहां से जाके उसको उठाता है और वो कर देता है.
और लोगों ने बाकायदा और ये आसान इस तरीके से है बिकॉज ये डिजिटल बेस्ड है, ये जो है कंप्यूटर की गेम है। तो कंप्यूटर का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है और वो देखता है कि जैसे ही वकास के अकाउंट्स में पैसे आए हैं ठक करके ट्रांसफर कर दो, यही होता है। और ऐसा ही जो है वो इस किस्म की चीजें होती है। तो आप अपनी जो है वो प्राइवेट कीज बहुत ज्यादा संभाल के रखने की जरूरत होती है। द सिक्योर्ड वे इज टू सिक्योर देम इन हार्डवेयर वॉलेट, नॉट एनीवेयर एल्स। हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं, उसमें रखने की जरूरत है। और इसके अलावा जो है हमें ये भी देखने की जरूरत है कि जो हम जिन टोकन्स में, जिन स्कीम्स में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस स्कीम की बेस पे क्या चीज चल रही है, वो क्यों आपको पैसे दे रहा है, वो एडिशनल जो है वो आपको जो बेनिफिट दे रहा है वो क्यों दे रहा है। और व्हाट इफ के अगर जो है वो बंदा चला जाए या ये वेबसाइट बंद हो जाए, आपके सामने तो वेबसाइट है ना, आपके सामने तो वेबसाइट है, अगर वो वेबसाइट बंद हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो आप जो है आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टली उस ब्लॉकचेन से किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सके। ये एक बात है जो कि समझने की बात है। अदरवाइज अगर हम लोग डायरेक्ट सिर्फ वेबसाइट से काम कर रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स खुली हुई हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में डील कर रही हैं, हम सिर्फ वेबसाइट से डील कर रहे हैं, वेबसाइट बंद हो जाएगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे इन रिस्क में? आई बिलीव देयर आर मल्टीपल अदर रिस्क, बट या कोई मेजर जो क्या? जी जी बिल्कुल, ये जो वकास साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा। इसमें मुझे एक जोक याद आ गया कि एक साहब ने अपना जॉब अप्लाई की, तो उन्होंने दूसरे रिक्रूटर ने पूछा आप क्यों जॉब करना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा माई ऑफिस हैज मूव्ड, so say what, this is not the reason to move the job. I say yeah, this is the reason because I don't know where did they move, right? So it's the same thing कि अगर आपकी वेबसाइट बंद हो गई तो वो आप डेफिनेटली आप उसको क्या करेंगे। अच्छा, वकास साहब ने जो पॉइंट रेज किया है प्राइवेट की पब्लिक की का, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा एक्सप्लेन कर दूं कि उसके बेनिफिट क्या होते हैं हार्डवेयर वैलेट के या कोल्ड स्टोरेज के। तो बेसिकली जब आप इंक्रिप्शन की बात करते हैं तो आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें लैंग्वेज की। हम में से मेरा ख्याल से 90% लोग जो है या ज्यादा ही कुरान शरीफ को पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि लिखा हुआ क्या है। तो इंक्रिप्शन इज वेरी सिमिलर टू दैट कि आपके पास इंक्रिप्शन में आपके पास चीजें एक इस फॉर्म में लिखी होती हैं कि जिसको आप अगर रोमन कैरेक्टर्स में देखें शायद आपको समझ में आ जाए, लेकिन उसके मायने वो नहीं होंगे जो वहां पे लिखे हुए। तो आप उसको शायद थोड़ा सा समझ जाएं, आपको कीड़े मकोड़े नजर आए जो भी। तो बेसिकली पब्लिक एंड प्राइवेट की का जो कॉम्बिनेशन है वो इसको इनक्रिप्ट करके इसको एक इस फॉर्म में लेके आता है कि कंप्यूटर उसको समझ सके और उसको फर्दर उसको प्रोसेस कर सके। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं क्रिप्टो में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो आई थिंक जो भी वकास साहब बात कर रहे थे कि शायद हंड्रेड्स ऑफ टोकन्स हों। आई थिंक सो फार अबाउट 37,000 टोकन्स हैव बीन लॉन्च्ड। और अब इससे अंदाजा लगाएं कि हर वक्त जो है वो नए टोकन्स आ रहे होते हैं, तो वहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि आप इसको किस तरह का हैंडल करेंगे। तो पंप एंड डंप इज समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट, जो कि एक बहुत बड़ी फ्रॉड स्कीम है कि जहां पे आप वैल्यू खुद ही उसकी इतनी बढ़ा देते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ जी अब तो इसको खरीदना चाहिए, और जब वो उसको खरीदने जाते हैं तो उसके बाद उसकी वैल्यू जो है फिर वो आप उसको मार्केट में डंप करके उसकी वैल्यू को नीचे गिरा देते हैं। तो अगर आपको क्रिप्टो के रिस्क समझने हैं तो आप सिंपल ये समझे कि स्टॉक एक्सचेंज की क्या रिस्क है। मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक एक्सचेंज के जो रिस्क हैं वही रिस्क, सिमिलर रिस्क आपके पास क्रिप्टो के अंदर भी आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्रिप्टो के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्रिप्टो को रख रहे हैं तो उसको कभी भी आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए ना रखें, उसको आपने रखना है हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जब भी आप उसको शॉर्ट टर्म में रखेंगे आपको लॉसेस होंगे। तो इसीलिए उसके अंदर जो एक क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर टर्म है होल्ड की, होल्ड, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको लॉन्ग टर्म में रखना है और आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि आप उसको लॉसेस को बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो को समझते नहीं है, वो उस बैंड वैगन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जी सब पैसे बना रहे हैं हम भी पैसे बनाएं, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। सेकेंड रिस्क जो है वो जब क्रिप्टो की वैल्यू ऊपर जाना शुरू होती है तब उस पर लोग खरीदना शुरू करते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो वहां पे उसके जाने के बाद वो फिर ड्रॉप होगी। जो कैंडल ग्राफ हम कहते हैं, एक तो होता है कैंडल लाइट डिनर, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर वो जो कैंडल डिनर होता है ना, वो आपका इतना खतरनाक हो जाता है
कि आप जो है ना उससे बर्न हो जाएंगे डेफिनेटली। तो अनलेस के आपको ट्रेडिंग का बहुत अच्छी तरह आइडिया है तब आप इसके अंदर जाएं। वो तमाम लोग जिन्होंने CFDs के अंदर डील किया है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस के अंदर, तो उनको एक बहुत अच्छी तरह आइडिया है कि क्रिप्टो के रिस्क कितने ज्यादा हैं और यहाँ पे आप क्या क्या कुछ लूज कर सकते हैं। तो इन नटशेल जैसे स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसी तरह क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी है। द डिफरेंस इज के स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बाथ इतना ज्यादा सीवियर नहीं होता जितना क्रिप्टोस के अंदर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। यार एक सवाल और अब आता है कि यू नो एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन दैट इफ एनी सेंट्रलाइज्ड बैंक विल इशू इट्स ओन करेंसी, हाउ वुड this be then decentralized, you know? So I know it's a question too much into future, but Waqas, would you like to take it on? Do you believe you can? Yeah, I think I can. ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक मकसद है ना वो फोत हो जाता है अगर आप जो है किसी एक बैंक के हाथ में उसका कंट्रोल दे देते हैं। द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ बिटकॉइन वाज के सेंट्रलाइज जो एक ऑटोनॉमी है, सेंट्रलाइज एक जो है मोनोपोली है वो खत्म की जाए सेंट्रल बैंक्स की। वो शायद पता नहीं कि जो है वो गुस्सा था या जो है वो कोई बदमजगी थी क्या थी सतोशी को, कि उसने ठान ली थी कि जो है वो ये डिसेंट्रलाइजेशन खत्म करनी है। और आप देखें अगर बिटकॉइन विच इज बेसिकली पायनियर वी कैन से इन द ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में, और उसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं है जो हम अभी बात कर रहे हैं। वो चीज जो है जो उसने बनाई थी उसमें सारी चीजों को सेंट्रलाइजेशन को ही रद्द करने की बातें की थी। और उसकी अगर आप उसका लिटरेचर पढ़ें तो वो सारी की सारी बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ बातें हैं। वो शुरुआत जो उसके प्रीफेसेस हैं उसके बाद वो बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ है। और बैंक्स भी बीच में अगर आप कोई आर्टिकल पढ़े होंगे डेफिनेटली आपने, तो बैंक सारे के सारे जो है वो क्रिप्टोस के अगेंस्ट हो गए थे बिकॉज वो उनको अपना एक कॉम्पिटिटर समझ रहे थे। अब जो है वो वही वाली बात है कि इफ यू कांट कम्पीट तो आप उसको जो है वो मर्ज कर लें। बैंक भी यही कर रहे हैं कि जो है वो अब अपनी डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं। एज आई सेड अर्लियर, ये डिजिटल करेंसी शायद हो सकता है ब्लॉकचेन पे ना हो, लेकिन जो है वो कंट्रोल वही आ जाएगी। तो होगी तो ये यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मूव हो रही होगी, लेकिन जो असल बात है कि जो है वो इस पे किसी का कंट्रोल ना होना वो चीज नहीं होगी। इस पे कंट्रोल वही होगी, इस पे वही कदगन लगी हुई होगी जो कि बाकी फिएट करेंसीज पे लगी हुई हैं। जो ये मेरे ख्याल में इसका आंसर होगा। Thank you so much. You know, and I believe the last question has been answered कि how does cryptocurrency drives its value? मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब आपने यही जवाब दिया था ना कि डिमांड एंड सप्लाई, या there is another answer to this question? जी बिल्कुल 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 यही है इसका जवाब। और इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज और ऐड करूं। कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। अब उसमें ये बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल तजम्मुल साहब ने एक सवाल पूछा है, हाउ टू लेजिट द टोकन, हाउ टू नो दैट इट इज नॉट अ स्कैम प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ये एक ऐसी सवाल है, मैं आपको एक करेंसी नोट दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। ये 5 लाख का नोट है, क्या ये वैलिड, ये क्या लेजिट है या ये जाली नोट है, क्या है ये? कुछ हम इसको देख सकते हैं। तो दिस इज वेरी सिमिलर विद द टोकन। आप किस तरह, जो चीज आपको पता नहीं है उस चीज को आप किस तरह देखेंगे कि क्या वो वैलिड है, लेजिट है या नहीं है। अब जो मैंने आपको करेंसी नोट दिखाया है, सब वियतनामीज करेंसी, 5 लाख यहाँ का सबसे बड़ा नोट है और इसकी वैल्यू शायद पाकिस्तानी रुपए में समथिंग लाइक कोई $25 कितने बनते हैं आजकल, आई डोंट नो, कोई 4-5 हजार रुपए कितने, समथिंग लाइक दैट। तो इज समथिंग लाइक दैट। तो बात आती है जब कि टोकन लेजिट हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या लेजिट है? डेफिनेटली। क्या टोकन्स लेजिट हैं? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो वहां पे आपके फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर इसको थोड़ा सा एक चीज और देखने की जरूरत है कि ब्लॉकचेन इज नॉट क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी इज नॉट ब्लॉकचेन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के वो तमाम चीजें जिसके बारे में आपके पास मुकम्मल मालूमात नहीं है, उसकी ट्रेडिंग के अंदर जो है कम से कम कूदने से पहले बहुत ज्यादा इस बात की जरूरत है कि आप उसको
अच्छी तरह उसका मुताला करें, उसके बाद फिर आप उसकी ट्रेडिंग में या उसकी डीलिंग के अंदर जाएं। अब मैं अगर आपको 5 लाख वियतनामीज डॉन का नोट देके मैं आपसे बोलूं कि जी आप मुझे जो है वो 5,000 रुपए दे दें, क्या आप देंगे? आप सवाल पूछेंगे क्यों दे दूं, मुझे तो नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। तो दैट मीन्स कि फिर आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि हाँ जी ये एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल। सेम थिंग अप्लाइज विद क्रिप्टो। ये बताइएगा कि लेजर नैनो एस फाइन, ये मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। आप में से कोई आंसर बता सकता है कि व्हाट इज इट? ये बेसिकली जी डॉक्टर साहब जी प्लीज वकास प्लीज। ये बेसिकली हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं। तो जो हमारी कीज होती हैं जिसको हम प्राइवेट कीज कहते हैं, इट्स इक्वल टू पिन कोड ऑफ आवर बैंक अकाउंट्स। तो वो जो प्राइवेट कीज होती हैं इसको ये यूजुअली हमारे कंप्यूटर्स के अंदर ही सेव हुई हुई होती हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर्स के अंदर ना सेव हो, क्योंकि कंप्यूटर आर प्रोन टू हैकिंग, तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर ना सेव हो, कहीं और सेव हो, उसके लिए जो है ये हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं कि आप हार्डवेयर के अंदर जो है यूएसबी की तरह होता है, इसको आप अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं और जो है वो आपका जो कीज होगी, जो प्राइवेट कीज होती हैं, वो उस यूएसबी में सेव होती हैं। और जब आप अपने क्रिप्टो की कोई भी ट्रेडिंग करने जाएंगे तो जो उसका सॉफ्टवेयर है वो वहीं से की को लेके आपको सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग करने देगा। और जब जैसे ही आप उसको की यूएसबी निकाल देंगे इस हार्डवेयर वॉलेट को, तो कंप्यूटर को वो कीज याद नहीं रहेंगी। तो अगर कोई आपके कंप्यूटर को हैक करता है तो उसको वो कीज नहीं मिलेगी। इस वजह से जो है ये लेजर वॉलेट्स यूज किए जाते हैं या हार्डवेयर वॉलेट्स यूज किए जाते हैं। I believe we have no other questions that remain unanswered, and we are almost 2 minutes away from the session end. So at this point in time, I would like to take this opportunity to thank all the participants. I believe the session was, the choreographed session was just for 20 odd minutes, and it lasted for an hour because of your very exciting and excellent questions. So thank you so much for answering or for asking those questions. And at the very same time, I would like to thank our distinguished panelist. I know that we missed Amir Saab today. We were really looking forward to hearing him, but unfortunately, the technology did not support us. But yes, Dr. Rizwan and Waqas, thank you so much for educating us all, including myself, on this very, very important and emerging topic, very, very in and very valid and relevant, and would be increasingly valid for our people in the days to come. So thank you so much. Any last minute comment from Dr. Saab, yourself, or Waqas Saab before we close this call? Sure, definitely. I mean, 1 घंटे के अंदर क्रिप्टो करेंसी की सारी चीज़ों को कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एज वी मेंशन्ड अर्लियर कि हम इसको सीरीज ऑफ वेबिनार करेंगे। इंशाल्लाह अगला वेबिनार नेक्स्ट वीक हम लेके आएंगे और उस पर फर्दर हम इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। तो आई थिंक इट्स रियली गुड कि हम इसको अंडरस्टैंडिंग को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करते जाएं कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, फिर हम उसके फर्दर एस्पेक्ट्स को भी हम अगली दफा इंशाल्लाह देखेंगे। Done. Waqas Saab, anything from your end? No, not yet. Thank you so much, everyone. Thank you. And we will keep coming back to you with some exciting and interesting topics in the days to come. Looking forward to having you all in our next webinar, which is due to come very, very soon. Thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Thank you so much. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.